Welcome to our channel Nirmal Vidya UPSC. Hello aspirants, I am Kshama and I will be teaching you the Civil Service Exam Foundation course. This is our NCERT History Class 6, Lecture 2. Chapter 1, Early Man, Part B. We have already completed the Part A of this chapter. Please go and check that. Here is a disclaimer. This channel is an independent educational initiative created to assist aspirants of the UPSC Civil Services examination. The content presented here is for academic purposes only and is not affiliated with any government body, coaching institute, organization, or religious community. All rights are reserved by the creator of this channel. Unauthorized copying, reproduction, or distribution of the material is strictly prohibited. References, images, and external resources used remain the intellectual property of their respective owners and are shared here under fair use for education. Any revenue generated from this channel is solely intended to sustain and support the continuation of educational work. Viewers are encouraged to cross-check information from standard reference books and official UPSC sources. So let's begin the beginning of settled life. So, how the early man began his settled life? As he was wandering from place to place as a nomad, somewhere at point he thought of settling down. So, the man's knowledge of environment increased. And these are the topics we are going to study in our next slides. Taming of animal, discovery of metals, the wheels, the early village, dress and ornaments, society, and religion. So, these are the concepts where the beginning of a settled life started. So, how the man's knowledge of environment increased? See, here he desired for more comfortable way of living as he was wandering from place to place as a nomad. So, the thought of settling down at one place and cultivation came in his mind. So, he desired for a more comfortable way of living. Then, number of discoveries led to a pattern of life. Then he had discovered many tools, wheels, metals for his day-to-day life, where he can easily go on with his life. The most important was the discovery that man could grow plants and grains. So, when he started to settle down, he discovered agriculture. He discovered how we can grow plants and grains. Then he found that by putting seeds into soil and watering the soil, plants would grow. ऐसा हुआ होगा कि कहीं कोई बीज गिर गया होगा, then he noticed that कि वो वहां से पेड़ आया होगा. So he found that by putting seed into the soil and watering the soil, plants would grow. यहाँ से उसका cultivation start हुआ. Now the primitive man don't need to wander from place to place in search of food. तो यहाँ अब primitive man को क्या हुआ, एक place of settlement मिल गया कि वो एक जगह पे अपना cultivation कर सके और खुद का खाना बना सके और एक फैमिली में प्रॉपरली सेटल हो सके. So he began to settle as an agriculturist and stopped being a nomad. यहाँ पे वो पूरी तरह से एक फार्मर या एग्रीकल्चरिस्ट बनने को तैयार हो गया. तो इन इंडिया दिस चेंजेस टुक प्लेस अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर्स होगा. बाकी देशों में ऑलरेडी हो चुका था, बट इंडिया में 5000 ईयर्स अगो ये सेटलमेंट स्टार्ट हुआ. Now, taming of animals. तो as he settled down, तो उसने क्या किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, जैसे डॉग्स हो गए, गोट हो गए, और फिर उनसे जो मिल्क हो रहा है, तो he started using that for his own needs. So man discovered that animals can be tamed. Instead of hunting for food, animals can be used for other purpose as well. So taming goat can provide milk and increase in their breed leads to more production of milk and meat. तो अब जब वो बकरी पालने लगा या काऊ गोट
जैसे जो पालने लग गया तो उससे उसको सिर्फ मीट नहीं मिल रहा था, उससे उसको मिल्क भी मिल रहा था। और जो बुल्स है, ऑक्स है, ये क्या कर रहे थे कल्टीवेशन में, उसका काम कर रहे थे, या तो फिर कार्ट चलाने में उनका काम आ रहे थे। तो देर आर मेनी वेज, सो ही फाउंड आउट दैट एनिमल्स कैन बी टेम्ड एंड यूज्ड फॉर हिज पर्पस। टेमिंग डॉग्स कैन बी हेल्प टू मैन इन मेनी वेज। अब डॉग क्या करता है, अगर सब खेतों पे जा रहे हैं तो घर की रखवाली करने के लिए डॉग है। कोई भी छोटा मोटा, डॉग एक बहुत वफादार प्राणी है, ये हम सब जानते हैं। तो he can use as a protector. The animal can also draw plows and cards, thus helping man. तो इस तरह से by taming animals, ना सिर्फ hunting के लिए यूज ना होते हुए animals can be used in other purpose as well। ये सब समझ में आया तो वो animals को domestic करने लगा। Then discovery of metals. How a lump of ore was melted and metal discovered, we do not know. But to begin with, when the primitive man began to settle down and grow food, he had to clear a patch of ground by cutting down trees and shrubs. अब देखो, पहले तो हमको ये पता नहीं है, आज तक हमें पता नहीं चला है कि मेटल को उन्होंने कैसे मेल्ट किया था और मेटल डिस्कवर कैसे हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में प्रिमिटिव मैन जब सेटल होने लगा और फूड ग्रो करना लगा तो उसको पहली कंडीशन क्या थी कि हम इतने सारे ट्रीज कैसे काटेंगे। पहले तो उनको ग्राउंड को क्लियर करना पड़ता है फार्मिंग के लिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे, स्टोन एक्स। फॉर दिस स्टोन एक्स वाज यूज्ड। लेकिन उनमें बहुत मेहनत लगती थी, स्टोन टूल्स इतने शार्पन नहीं होते थे, तो इट वॉज अ टायरिंग जॉब। तो इसके कारण वहां से एक डिस्कवरी हुई है कॉपर की। तो जब कॉपर डिस्कवर हुआ था, इट वाज इजी फॉर देम टू कट डाउन ट्रीज। क्यों? क्योंकि उसके टूल्स बनने लग गए। लेटर कॉपर वाज मिक्स्ड विथ टीन और जिंक टू मेक न्यू मेटल और alloy bronze। अब knives and axes were sharper and more efficient to use। अब जब कॉपर का डिस्कवरी हुआ तो उससे जो नाइफ्स और एक्सेस बने, उससे कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इजियर हो गया। ठीक है। और ये उनके डेवलपमेंट में और एडवांसमेंट में चीजें आ गई। Brahmagiri near Mysore and Navda tolling on the Narmada copper and bronze axes and knives have been found। तो ब्रह्मगिरी में और नवदा टोली में नर्मदा रिवर के पास ये कॉपर और ब्रोंज एक्सेस पाए गए हैं। द व्हील। अब व्हील का डिस्कवरी बहुत ही फायदेमंद हुआ है। उनको पॉट्स बनाने की कला आ गई, तो उनका खाना बनाना, पानी स्टोर करना, ये सारा काम इजी हो गया। व्हील के कारण कार्ट्स बनी जहां से ट्रैवल होना इजी हो गया। एक हैवी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाना इजी हो गया। सो मैन रिक्वायर्ड वेसल्स टू स्टोर हिज सरप्लस ग्रेन्स एंड लिक्विड। दिस नेसेसिटी लेड टू मेक earthen pots। ठीक है। अब इतना सारा अनाज और पानी कहाँ रखते थे, तो यहाँ से उनको एक किया है कि मिट्टी के घड़े बनाने हैं। अब पहले तो मिट्टी के घड़े कैसे बनाते थे, वो बास्केट को मट से, मिट्टी से बनाते थे। फिर धीरे धीरे व्हील का जब इन्वेंशन हुआ तो उसमें क्या हो गया, इट वॉज इजियर फॉर देम टू मेक अदर पॉट। पहले विमेन बनाती थी बिगनिंग में, फिर मेन भी बनाने लगे। The use of wheel improved making of pottery. The wheel is in for carts drawn by animals for travel. It can be used for moving heavy objects. So this is the way the wheel was benefited to the primitive man. Now these are the Stone Age tools and objects. See how sharpen, धीरे धीरे देखो यहाँ पे ये सारे tools and objects used by man in the food producing stage। तो earthen pots है, यहाँ पे ग्राइंडर हो गया, यहाँ पे देखो एक्स हो गया। तो ये सारे टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं।
बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ. अब द अर्ली विलेज. So, nomad people now settle in one place, forming a village where they built huts and grew barley, rice or wheat and kept domestic animals. अब इस स्टेज पे आ गए कि वो अपना खुद का विलेज फॉर्म करने लगे, एक कम्युनिटी में रहने लगे. तो जब वो नोमैड पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद करके जब उन्होंने एग्रीकल्चर लिया, तो उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी फूड के लिए. तो वो एक ही जगह पे जहाँ पे सॉइल फर्टाइल है वहां ही वो एक विलेज बना के ग्रुप्स में रहने लगे. तो वहां पे वो क्या कल्टीवेट करते थे? बार्ली, राइस या वीट, और डोमेस्टिक एनिमल्स रखते थे. हट्स वर सराउंडेड बाय मड वॉल और फेंस. अब वो विलेज कैसे होते थे? जो भी उनके हट्स होते थे, जैसे हम गाँव में आज रूरल एरियाज में भी देखते हैं, तो वो हमेशा हट्स क्या होते थे? सराउंडेड होते थे या तो मड वॉल से या फेंस से. और खेती जो होती थी वो आउटसाइड द फेंस होती थी. द फील्ड्स वर आउटसाइड द फेंस. विलेजेस वर स्लाइटली हायर द ग्राउंड देन द फील्ड्स. अब विलेजेस जो होते थे वो एक थोड़े ऊंचे ग्राउंड पे होते थे और फील्ड्स नीचे होते थे. अब इसका ये भी एक होता है कि अगर बारिश के दिनों में पानी घर में नहीं आता था, तो ये भी एक लॉजिक हो सकता है कि हायर ग्राउंड पे क्यों होता है. फायर वॉज lit in hut on cooking on which cooking was done. तो जैसे चूल्हे पे हम खाना बनाते हैं, आज भी रूरल एरियाज में चूल्हे पे खाना बनाया जाता है. तो दैट वाज द सेम थिंग व्हेन इट स्टार्टेड. ग्रेन्स वाज ग्राउंड बिटवीन स्टोन टू मेक फ्लोर. तो हम जो गेहूं पीसते हैं, आटा जो भी आटा पीसते हैं, तो हम वो ग्राइंडर में पीसते हैं. ठीक है. women used to make pots in the beginning with hands. तो पहले women's pots क्या बिगनिंग हैंड्स से बनाती थी. So this is the early village. Now, how the dress and ornaments were. The Chalcolithic man was fond of ornaments and decoration. ठीक है. जब Chalcolithic man किसको बोलते हैं? जब ब्रोंज का इन्वेंट कॉपर ब्रोंज का इन्वेंशन हुआ था, तब Chalcolithic पीरियड बोला जाता है. तो इनको ऑर्नामेंट्स और डेकोरेशन का बहुत फॉन्ड था या बहुत शौक था. विमेन वेयर ऑर्नामेंट्स, सॉरी, यहाँ पे WEAR. Women wear ornaments of shell and bone and carried finely worked combs in hair. Men had invented the technique of spinning and weaving from cloth from cotton. तो women क्या पहनते थे? जो शेल होते हैं, समुद्र पाए जाने वाले जो शेल्स होते हैं या फिर बोन होते हैं, उनसे वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे और पहनते थे. अगर आपने देखा होगा कि आदिवासी लोग अभी भी पहनते हैं, तो वो शेल्स और बोन के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं. तो मैन हैड इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ स्पिनिंग. अब स्पिनिंग और वीविंग भी आ गया था जब वो सेटल हो गए. तो उन्होंने क्या किया? अब पेड़ पौधे या फिर स्किन ऑफ एनिमल्स को छोड़ के उन्होंने कॉटन से कपड़े बनाना शुरू किया और वो पहनने लगे. सो दिस इज द डेवलपमेंट व्हेन द सेटलमेंट लाइफ came. Of society, living in village communities is it became necessary to follow rules of conduct. अब जब हम एक समाज में रहने लग गए हैं, तो कुछ रूल्स ऑफ कंडक्ट है. क्या रूल्स ऑफ कंडक्ट है? कि सबसे पहली चीज तो ये आ गई कि हर पर्सन को क्या जॉब मिलनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ काम डिवाइड होना चाहिए. तो द फर्स्ट थिंग वाज टू डिसाइड व्हाट ईच पर्सन जॉब वाज टू बी. तो कुछ लोग क्या गए, कुछ खेती करने गए, फील्ड्स पे काम करने गए, कुछ एनिमल्स की देखभाल करने लगे. अब जब वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे थे एनिमल्स, तो उनका ख्याल रखना भी जरूरी है. फिर कुछ हट्स बिल्ड करने लग गए, कुछ टूल्स एंड वेपन्स बनाने में लग गए. सो ईच पर्सन गॉट्स देयर ओन जॉब. जिसको जिसमें इंटरेस्ट था शायद उसमें वो चले गए. सो सम वेंट फॉर वर्क टू फील्ड्स, some looked after animals, some built huts and made tools and weapons. Some women had to spin and weave clothes, some make pottery, others cooked and looked after children. So when men went to work, women also helped them to work.
Sorry for the inconvenience. Some women had to spin and weave clothes. Some make pottery, others cooked and looked after children. तो क्या हुआ, जैसे मेन काम पे गए, वुमेन्स भी काम कर रही थी, उनका हाथ बटा रही थी. सो इट इज नॉट फ्रॉम हियर कि वुमेन्स काम नहीं करेगी. वो तब भी काम करती थी, वो आज भी काम कर रही है. सो सम वुमेन हैव टू स्पिन एंड वीव क्लोथ्स. तो जो काम जिसको अच्छा आता है वो काम उन्होंने ले लिया. कुछ पॉटरी बनाने लगे, कुछ बच्चों की देखभाल करने लगे, कुछ खाना बनाने लग गए. सो पूरा जो सोसाइटी है उसमें हर काम सबको बांटा गया है. सो इन दिस वे दे फॉलो द रूल्स ऑफ कंडक्ट. अब हर सोसाइटी में हर विलेज का एक लीडर होता था. तो वो कौन होता था, आज भी हम देखते हैं कि जो रूरल एरियाज में है, तो जो सबसे वाइजेस्ट मैन होंगे वो लीडर होंगे, या तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट है या ब्रेवेस्ट है. सिमिलरली पुराने जमाने में जब एंशियंट टाइम की हम बात करते हैं, तभी भी सेम कल्चर फॉलो होता था. द लीडर ऑफ द विलेज वॉज द ओल्ड वाइजेस्ट मैन और समटाइम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रेवेस्ट. नाउ रिलीजियन. अब वो टाइम में रिलीजन कैसा था. मेन क्या होते थे, उनको डर था किससे, अर्थक्वेक से, थंडर से और डेथ से. अब आपको पता ही नहीं कि किसको क्या हो गया, वो बोल क्यों नहीं रहा है, कुछ नहीं. तो वो उन्होंने क्या सोचा कि ये डेथ है. अब बिजली अचानक कड़क रही है, बारिश अचानक हो रही है. तो जब उनको नॉलेज नहीं है किसी चीज का, तो पहली बार में इंसान डर जाएगा. तो सेम उनके साथ भी हुआ होगा. अर्थक्वेक्स आ गए तो दे डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस. तो उनको क्या लगा कि ये क्यों हो रहा है, किस किस लिए हो रहा है, हम इसका रीजन नहीं निकाल पा रहे हैं. तो दे, जैसे अभी कोई वाइजेस्ट मैन होगा उसमें, उनके सोसाइटी में, तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि शायद हम, हमारे ऊपर आकाश है और हम धरती से, हमको सभी चीजें मिल रही है, धरती हमें खाना दे रही है. तो दे थॉट ऑफ सर्विंग देम एज गॉड. तो उन्होंने क्या किया कि स्काई गॉड एंड मदर अर्थ को वर्शिप करना शुरू कर दिया. जैसे एंड इफ द सन इज टू राइज एवरी मॉर्निंग एंड द अर्थ टू बेयर क्रॉप्स, वी मस्ट वर्शिप द सन गॉड एंड अर्थ गॉडेस. सो दे मेड स्मॉल क्ले इमेजेस एंड वर्शिप देम. फिर लेटर क्या हुआ, वहां से जो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस एंड sang hymns. So later there arose a group of men who performed sacrifice and sang hymns. When man or woman died, they were buried in graves, and if a child died, it was put in a pot or urn, then buried in a grave. तो जब उनके रिलीजियन में क्या हुआ, अगर कोई इंसान मर जाता था तो उनके लिए बरियल सेरेमनी होती थी, और चिल्ड्रन जब मर जाते थे उनको पॉट में रख के फिर ग्रेव में बरी किया जाता था. तो उनके रिलीजियन में ये चीजें फॉलो होने लग गई. अब कौन से एज को क्या बोलते हैं, जैसे ओल्ड स्टोन एज को पैलेलिथिक एज बोलते हैं. तो ये क्या है, द पीरियड व्हेन मैन यूज्ड क्रूड स्टोन टूल्स एंड वेपन्स एंड लेड इन नोमैडिक लाइफ. तो जब वो स्टोन टूल्स और वेपन्स का यूज करते थे, उसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज या पैलेलिथिक एज. Neolithic age, the period when man used polished stone tools, domesticated animals, looked to agriculture and led a settled life at village. तो ये हो गया न्यू स्टोन एज. अब चालकोलिथिक एज में क्या हुआ था, द ट्रांजिशनल स्टेज when both copper or bronze and stone tools and weapons were used and man led a settled life. Chalco is a Greek word and means copper. तो चालकोलिथिक एज, ये तीन टाइप के एज है हमारे. ठीक है. सो समरी में हमारे क्या है, मैन हैड कंसिडरेबली एडवांस फ्रॉम प्रिमिटिव स्टेज. अब इतना तो हमने देख लिया कि स्टार्टिंग में प्रिमिटिव मैन था, उसके बाद वो नोमैड बना, उसके बाद वो सेटल लाइफ जीने लग गया. सो वी हैड अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन द डेवलपमेंट ऑफ मैन. ही हैड रेगुलर प्लेस टू लिव. नाउ सेटल लाइफ में क्या हुआ, उसके पास खुद का अपना प्लेस था, रहने के लिए घर था. ठीक है. तो उसकी लाइफ और उसके कंफर्ट जोन भी बढ़ गया. लेकिन
अभी तक उसको क्या था यहाँ पे, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू राइट. इट केम इन द लेटर पीरियड व्हेन सिटीज केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो इस तरह से हमने सारी चीजें देखी कि अर्ली मैन जो थे वो प्रिमिटिव स्टेज से नोमैड होते हुए एग्रीकल्चर की तरफ सेटल लाइफ में कैसे आए. So this was all about the early man by Romela Thapar. And study the past if you would define the future by Confucius. अब Confucius ने क्या किया, कहा है कि हमें पास्ट की स्टडी इसलिए करनी चाहिए, क्योंकि हम उससे हमारा फ्यूचर डिफाइन कर सकते हैं. So these are the very good words of Confucius. So with this teaching, I would like to thank you all for watching my lecture, and we will see you in the next lecture. Thank you for watching.